Hello students, I hope you all are doing great. Today we will start our new unit, that is second unit. But before starting our second unit, I want to discuss the certain things with you regarding the first unit that we have already completed. So I have skipped last chapter, that is error analysis, that we will do later, right? So please don't be confused that last chapter is completed or not. I just skipped the error analysis, that is very small portion that we will do later. Now I will start the second unit, that is kinematics, right? Okay, so the second unit name is kinematics, and we will do the first chapter of this second unit, that is motion in a straight line. So the chapter 1 is मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स हम सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग जो पार्टिकल्स मूव करेंगे या बॉडी मूव करेगी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. And students, please, if you find any difficulty regarding previous lecture regarding first unit, please let me know, we will discuss. Okay, so our second unit is motion in a straight line. So first understand the concept of these two branches of mechanics. The first one is statistics and second one is dynamics, right? So first one is statistics. By the name, as you see, stat means at rest, dynamics means in motion. So when we study the objects, they are at rest, then that branch study is known as the statistics, right? When we study the objects at rest. But when we study the object in motion, that means अगर body move कर रही है तो जब हम उनकी study करते हैं, that we call as dynamics. Okay, so stat means study of object at rest and dynamics means the study of object in motion, right? Okay, so next thing is यूनिफॉर्म मोशन. एन ऑब्जेक्ट हैव यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म का मतलब होता है अगर कोई बॉडी फर्स्ट 5 मिनट में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, देन इट विल कवर 5 मीटर ऑल्सो इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, राइट? सो दैट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम की, ताकि उसमें कोई चेंज ना आए या फिर वो बॉडी बिल्कुल अपनी मोशन चेंज ही ना करे. दैट मीन्स जितने पे वो पहले उतने पे रहे. सो आइदर द बॉडी एट रेस्ट or cover equal distance in equal interval of time, that motion is known as the uniform motion. Okay, or you can say in another definition form, even a large number of forces acting on it, then the forces are said to be in equilibrium. That means वो body uniform motion में हो जब हम उन पे forces लगाएं. अगर आप बहुत सारे forces एक body पे लगा रहे हैं but वो फिर भी move नहीं कर रही, why? क्योंकि उस पे equal and opposite force लग रहे होंगे. एक side से कोई उतना ही force लगा रहा होगा जितना दूसरी side पे लग रहा है, right? So that means वो body move ही नहीं कर पाएगी, या फिर move करेगी तो पहले अगर थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 मिनट्स में या अगले इंटरवल में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कि हमें लगेगा कि वो बॉडी मूव ही नहीं की है, राइट? तो जब बॉडी का पता ही ना चले कि वो कांस्टेंट डिस्टेंस ही ट्रेवल करती जा रही है, आफ्टर अप्लाइंग सो मेनी फोर्सेस, दैट बॉडी इज नोन एज इन यूनिफॉर्म मोशन. और जो उस टाइम पे फोर्सेस लग रही होती है बॉडी पे, उसको बोलते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेवर चेंज. दैट मीन्स वो बॉडीज और वो फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, दैट वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है? तो कितना भी फोर्स लगाओ द बॉडी विल नॉट मूव, और अगर मूव करेगी तो इक्वल डिस्टेंस ही मूव करेगी, right? I hope you will understand this concept of uniform motion. In this lecture we will discuss this again and again, and you will know that what is exactly uniform motion, right? Okay, so in statistics, basically the study of motion of object under the effect of forces in equilibrium. That means हम motion तो study करते हैं. आप बोलोगे कि स्टैटिस्टिक्स में आपने बोला कि आप रेस्ट पे बोलते हो, बट स्टैटिस्टिक्स में ये आता है कि अगर फोर्सेस लग रही हैं बट वो इक्विलिब्रियम पे, मतलब कितनी भी फोर्सेस लगाओ बॉडी पे बट बॉडी मूव नहीं कर रही है, वो रेस्ट पे है, इसीलिए हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो स्टैटिस्टिक के अंडर ही आ रही है, राइट? जब बहुत सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में लगती हैं, या फिर वो अगर मूव कर रही है तो इक्वल, तो that we will call it study in statistics, right? Next is motion of the object is studied under 2 headings. That means हम जो motion के बारे में पढ़ते हैं body के, तो हम उसको 2 forms में देखते हैं. First is kinematics and second one is dynamics. So
Our lecture is on kinematics. Our unit second is whole on the kinematics, right? Dynamics we will do later. In this year syllabus, the second unit is kinematics. So, what is the difference basically between kinematics and dynamics? See, kinematics means जब कोई body move कर रही है, कैसे move कर रही है, doesn't affect. हमें सिर्फ देखना है कि body अगर काम कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो ओके। तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि वो बॉडी मूव कर रही है तो किसकी वजह से कर रही है, अगर रुक गई है तो किसकी वजह से रुकी है, राइट। तो हम उसका कोज नहीं देखते, हम उसका रीजन नहीं देखते, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग अकाउंट द कोज ऑफ मोशन, दैट मीन्स जब हम मोशन स्टडी करते हैं किसी बॉडी का विदाउट टेकिंग, जब हम उसको ये नहीं देखते कि वो मोशन किसकी वजह से हो रहा है। बट इन डायनामिक्स दैट इज ऑपोजिट, हम रीजन भी देखते हैं कि वो मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर वो बॉडी रुक रही है तो वो क्यों रुक रही है, राइट। तो डायनामिक्स मीन्स कि हम सब चीजें कंसिडर करके चलते हैं, काइनेमैटिक्स में हम सब चीजें कंसिडर नहीं करते, राइट। सो व्हाट दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। ओके, सो नेक्स्ट इज what is rest and what is motion. So rest and motion are both relative terms, please understand this. ये नहीं बोल सकते कि अगर एक बॉडी आपको रेस्ट में दिख रही है वो दूसरी बंदे के लिए जो दूसरा बॉडी उस चीज को देख रही होगी उसके लिए भी वो रेस्ट में होगी। सो relative means कि comparative है, हम कंपेयर करके बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखी है। If a body that you see in motion for you, but maybe that body will be rest for other person. For example, जैसे आप ट्रेन की कोच में हो, आप ट्रेन में मूव कर रहे हो, an object is said to be in motion if it change its position with respect to surrounding with time. That means अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कि उसके आसपास की बॉडी मूव कर रही है, रेस्ट में है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है तो वो रेस्ट होगी। सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन, राइट। सो व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम दैट इज मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स दैट इज एट रेस्ट। But I will explain that how these are two relative terms. I will discuss the example of train coach. For example, if a boy standing outside a train, कोई boy है वो ट्रेन की बिल्कुल बाहर खड़ा है और वो ट्रेन को चलते हुए देख रहा है, दैट मीन्स वो मूव करते हुए देख रहा है ट्रेन को, तो उस बॉय को क्या लगेगा, द पर्सन सिटिंग इनसाइड द ट्रेन। क्योंकि देखो अगर ट्रेन मूव कर रही है दैट मीन्स उस पर्सन जो बाहर खड़ा है वो रेस्ट पे है, वो खड़ा है जस्ट, उसको दिख रहा होगा कि ट्रेन मूव कर रही है, एंड उसको ये भी लग रहा होगा कि जो अंदर एक पर्सन बैठा है ट्रेन कोच में, that he or she will also move, but actually में वो person is not moving. So for person or boy standing outside the train, he or she will watch that the train will move and the person in the train, in the coach, in one box or in one coach will also move, right? But for the person actually sitting around that person in a train, they are saying that the persons are rest, because actually person is rest, okay, the person is not moving. So according to boy outside the train, that person sitting inside the train is moving, but actually he or she is not moving. So what we conclude from this, that means if the rest और motion are two relative terms, अगर एक पर्सन के लिए जो बाहर खड़ा है उसके लिए वो बॉडी मूव कर रही है, बट जो अंदर बैठा है उसके लिए वो बॉडी ही एट रेस्ट. सो दीज आर टू relative terms. I hope you will understand this concept from this example. This is very common example, right? So please focus on these small things. Okay, so I will give an example of motion. If a bird fly or aeroplane is moving, a ball thrown by a boy, ship sailing in a sea, these are all the examples of motion, right? So a bird or aeroplane flying in example of motion, ball thrown by a boy is also an example of motion, a ship sailing on a sea is also an example of motion. Now you will see sometime कोई बॉडी मूव कर रही होती, दैट मीन्स समटाइम्स मोशन इज नॉट विजिबल बिकॉज दे आर इन रैंडम मोशन, राइट? रैंडम मीन्स कि वो zigzag पाथ फॉलो करते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो द मोशन इज नॉट विजिबल बिकॉज दे आर इन रैंडम मोशन. फॉर एग्जाम्पल गैस मॉलिक्यूल्स
गैस मॉलिक्यूल को आप मूव करते हुए नहीं देख सकते, बिकॉज क्योंकि वो जब एक साइड पे कोई पार्टिकल मूव करे तो दूसरी साइड पर कोई और, तो वो अपने एक मोशन को दूसरे मोशन से कैंसिल अप करते जाते हैं, तो एक्चुअली में वो मूव कर रहे होते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। सीजलेस मीन्स कि हमें लगता है कि कोई मोशन नहीं हो रही है, वो स्टॉप हो रखी है, राइट, बट एक्चुअली दे आर मूविंग। सो समटाइम्स इट्स हैपन दैट मोशन इज नॉट विजिबल बिकॉज दे आर इन रैंडम मोशन। रैंडम मीन्स कभी कभी इधर कभी उधर, राइट, सो जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सी, in this lecture we discuss the basic concept, nothing more, right? So in next lecture we will do the numericals or the derivation part or some equations. In this step lecture you will understand the basic concept that what we will read in this chapter forward. Okay, so what is point object or point particle? See, a body when cover a distance more than its dimension, that means अगर कोई body एक distance cover कर रही है, वो उसकी length से ज़्यादा cover कर रही है, then हम उस body को क्या लेंगे? Point particle और point object. That means a body when covers a distance more than its dimension. I think now you are able to understand what is dimension, because I have told you in the first unit that what are the dimensions, right? So it may be length, mass or time. So for a time being we just take the length as a dimension here. So I will explain you just by taking our example. For example, एक बस मूव कर रही है, as I written there, अब बस कवर अ डिस्टेंस, एक बस डिस्टेंस कवर कर रही है, तो फॉर एग्जाम्पल उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, राइट, और यू कैन से 5 किलोमीटर कर लिया, दैट इज अप टू यू। सो दैट मीन्स वो इतना डिस्टेंस कवर है, लेकिन वो बस का लेंथ 5000 होगा? नो, 5000 मीटर नहीं होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर। सो व्हेन यू कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और पाथ ट्रेवल्ड बाय दैट बस व्हेन कंपेयर विद इट्स लेंथ, दैट की लेंथ, बस की लेंथ कितनी होगी, तो आप जज करते हैं कि वो बॉडी कितनी छोटी है एज कंपेयर टू कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, राइट। आप बोलोगे कि बस तो इतनी बड़ी होती है, बट इन द टाइम बीइंग दीज आर ऑल द टर्म्स आर रिलेटिव। आप कंपेयर करके देखते हो कि बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और किसके कंपैरिजन में। सो व्हेन अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस मोर देन इट डायमेंशन, then we consider as the object as a point object or point particle, right? So we can say that path traveled by a body is more than the dimensions of body. Now you will see a bus cover a distance that is large as compared to length of a bus. So in that case we take bus as a point object, right? So all these are the relative terms. In this case we also consider these of negligible dimension, कि हम consider करते हैं कि बस की लेंथ बहुत छोटी है as compared to कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हम मोशन पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर में मोशन चलेगा इन 1D, राइट, क्योंकि हमारा नाम क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हमारे चैप्टर का, राइट। बट you just know that what is one dimensional motion, what is two dimensional motion, and what is three dimensional motion. Now the one dimensional means when a body move along one axis. हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, so what is coordinate frame? एक x axis, एक y और next is z. So 3 axis in a one frame, that is a coordinate frame, right? Now you will see अगर कोई बॉडी इन तीनों डायरेक्शन एक्सिस में से किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, that means that body is moving along a one dimensional. That means either x, either y, either z. Please don't confuse that तीनों मैंने लिख रखी हैं. The slash means either in x, either in y, either in z, right? Okay. If a body moves along the two axes, right, out of 3, either in xy, these one, either yz, these one, either zx, these one, right? नेक्स्ट इज 3 dimensional. अगर कोई बॉडी तीनों एक्सिस को कवर अप करके चल रही है तो हम उसको बोलेंगे कि बॉडी 3 dimensional में मूव कर रही है. नाउ we take the example, then you will more clear that what is 1 dimensional motion, what is 2 dimensional motion, and what is 3 dimensional motion. Now the 1 dimensional motion is if only one coordinate is required, that means either x, either y, either z, right? तो किसी भी बॉडी को पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़े, एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, दैट इज नोन एज अ वन डायमेंशनल मोशन. फॉर एग्जांपल, a motion of train along a straight track along one axis, either we take x, either we take y, either we take z, right? Okay,
सो नेक्स्ट इज टू डायमेंशन. अगर आपको टू कोऑर्डिनेट्स चाहिए एक बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, देन दैट मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन. द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज अ टू डायमेंशनल मोशन. अगर एक इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है फ्लोर पे, दैट मीन्स इंसेक्ट मीन्स सी, अगर कोई फ्लोर पे क्रॉल करेगा, फ्लोर मीन्स टू डायमेंशनल. नीचे वाला जो आपका फर्श होता है दैट इज टू डायमेंशनल, राइट. एक्स और वाई, अब ऊपर तो उड़ नहीं रहा वो, दैट मीन्स वो जेड एक्सिस की तरफ तो नहीं जाएगा, तो ओनली उसको टू कोऑर्डिनेट्स चाहिए. आइदर वो एक्स में मूव करे, आइदर वो जेड में, तो वो क्रॉल करेगा टू डायमेंशनल सरफेस पे. जो आपकी पेज होते हैं जिसपे आप लिखते हैं व्हाइट पेपर, दैट इज ऑल्सो टू डायमेंशनल, राइट. ओके, बट इफ यू टेक अ रूम दैट इज थ्री डायमेंशनल. आप हाइट भी लेते हो उसमें, ठीक है. अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ ले रहे हो दैट इज टू डायमेंशनल. अगर आप हाइट भी कंसीडर करते हो लेंथ और ब्रेड्थ के साथ, देन यू विल मूव टू थ्री डायमेंशनल मोशन. सो इफ आई कंपेयर कि वो अगर इंसेक्ट अभी तो क्रॉल कर रहा है, अगर वो फ्लाई करने लग जाए तो उसने हाइट भी कवर कर रही, राइट. सो इफ एन इंसेक्ट crawling that is two dimensional motion, and if an insect fly that is three dimensional motion, right. Okay, so if a insect fly then it becomes a three dimensional motion. So I will give an example that when all the three coordinates required to specify the position, that is a three dimensional, and the flying bird, flying kite, aeroplane are all the examples of three dimensional motion. Now we will discuss the basic definition. The main chapter starts from here, that is what is distance, what is displacement. If you are able to understand exactly what is the difference between distance and displacement, you will be able to understand this whole chapter, right. So please understand this concept, what is distance, what is displacement, and what is the basic difference between distance and displacement. Okay, before understanding these two concepts, let me introduce the rectilinear motion. The rectilinear motion of means straight line, right. So you can say a motion in a straight line, that is a rectilinear motion, right. Okay, so path length या distance एक ही चीज है, don't confuse. So path length क्या होता है, जितना भी distance कोई भी बॉडी कवर अप कर रही है एक सी पोजीशन से स्टार्ट होकर दूसरी पोजीशन तक, दैट वी कंसीडर एज ए पाथ लेंथ. पाथ मतलब कितना पाथ है, लेंथ मतलब कितना उसने पाथ कवर अप कर लिया, दैट इज द पाथ लेंथ. सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड पाथ लेंथ, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉडी ओ से स्टार्ट होके ए तक जा रही है, दैट मीन्स उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ओ ए पहले, फिर वो वापिस बी पे आ रही है, दैट मीन्स हम अब उसमें ऐड करेंगे ना ओ ए प्लस ए बी, फिर वापिस यहाँ तक, दैट मीन्स कैसे पाथ कवर किया, पहले ओ से ए, then move to B, then move to O. So O to A to B, then B to O. So in this distance you will never take the direction concept कि पहले बॉडी राइट हैंड साइड पे मूव कर रही है then left. In this take concept you will take only the magnitude concept. Means अगर एक बॉडी O से A तक मूव कर रही है पहले, फॉर एग्जाम्पल एट टाइम t0, पहले इनिशियली वो ओरिजिन पे थी, सबसे पहले ए पे गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके x1, राइट. सो वी विल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t1 क्या होगा, x1, राइट. मेजर फॉर्म ओरिजिन. नाउ अब वो वापस आई बी पे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके x2, दैट इज x2, राइट. सो द डिस्टेंस नाउ टोटल इज, पहले O to A गए तो x1 प्लस करेंगे x2 जो A से B हुआ है, राइट. सो पहले x1 फिर x2. नाउ अब t वापस आई उसी पोजीशन पे तो x1 पहले था, फिर इतना x2, फिर दोबारा यहाँ तक गई, दैट मीन्स x3. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज x1 प्लस x2 प्लस x3. सो द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज अ x1 plus x2 plus x3. So you will see in the distance concept, in path length concept, we doesn't consider the direction. That means मैंने ये नहीं बोला आपको कि आप पहले यहाँ से शुरू हुए यहीं पे वापस आए तो आपने क्या ही ट्रेवल किया, राइट. तो दैट विल लीड्स अस टू डिस्प्लेसमेंट टॉपिक. तो डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन लेते हैं, डिस्टेंस में हम नहीं कंसीडर करते हैं डायरेक्शन का कंसेप्ट. हम देखते हैं कि कितना उसने एक पाथ कवर किया, उतना हम एडअप करते जाते हैं, देन यू विल गेट टोटल डिस्टेंस. नाउ we will go to the displacement concept. So displacement is the distance covered by object in a particular direction. Please remember displacement में हम direction का concept consider करते हैं, right. So as you see in first example, मैंने आपको अभी बताया कि मैं जहां से शुरू हुई
पहुंची तो मैं वहीं पे वापस ओरिजिन पे, राइट। सो दैट मीन्स मैंने कोई एक्चुअली डिस्टेंस कोई ट्रेवल ही नहीं किया, उतना गई उतना वापस। तो यहाँ पे कितना डायरेक्शन का कंसेप्ट कंसीडर होगा, राइट। सो एट टाइम t1 मैंने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, एट टाइम t2 x1 माइनस x2 हो जाएगा। वाई? क्योंकि सी फ्रॉम फिगर, यस, पहले आप x1 तक यहाँ पे आए, आप वापस गए, तो यहाँ पे अब डायरेक्शन लेनी पड़ेगी हमें। अगर आप फॉर एग्जांपल ये आप कन्वेंशन ले रहे हो जहाँ यहाँ 0, अगर आप राइट जा रहे हो तो आप पॉजिटिव लोगे डायरेक्शन, अगर आप वापस आ रहे हो तो नेगेटिव। अगर मैं 0 to a जा रही हूँ दैट मीन्स मेरा पॉजिटिव x1 हुआ, वापस आ रही हूँ माइनस x2 होगा क्योंकि मैं लेफ्ट साइड पे आ रही हूँ, राइट। पहले मैं राइट साइड पे जा रही थी, दैट इज मैंने पॉजिटिव x1 लिया, अब मैं वापस आ रही हूँ b पोजीशन पे, देन आई विल टेक माइनस x2, राइट। ओके, सो नाउ यू विल सी आई विल टेक द t2 पोजीशन दैट इज x1 माइनस x2, और व्हेन आई विल कम बैक टू पोजीशन o आई विल टेक माइनस x3। दैट मीन्स आपने टोटल डिस्टेंस कोई ट्रेवल ही नहीं किया क्योंकि आप उसी पोजीशन पे वापस आ चुके हो। तो टोटल जहां आप देख रहे हो कि डिस्टेंस एड अप होते जा रहा था, तो टोटल डिस्टेंस क्या बन गया था, x1 प्लस x2 प्लस x3। बट इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू विल गेट 0 डिस्प्लेसमेंट एंड द एंड ऑफ एट टाइम t3। दैट मीन्स the t3 is the displacement at time t3, that means distance covered is non-zero। distance कभी भी zero नहीं होता, right। so that means distance covered is non-zero, distance कभी भी zero नहीं होता, and distance never be negative, as you see हमेशा add up ही होते जाते हैं। तो distance can't be zero, distance can't be negative, but displacement is zero, also be negative, also positive, right। so now we discuss some important things about the distance and displacement so that you will familiar with more these two terms, that is what is displacement, what is distance, right। so as you will be more clear now, displacement can be positive obviously, but maybe zero as we see above in example, and also negative, right, because we take the direction concept in displacement, but in distance we never take the concept of direction। so distance will always be positive, never be zero and never be negative, right। and one more thing, as you see distance हमेशा displacement से बड़ा ही होगा क्योंकि हम displacement में direction का concept लेते हैं तो negative negative करते जाते हैं जब वापस आ रहे होते हैं, but distance में हमेशा add up, right। so distance will मे भी इक्वल हो सकता है, बट ऑलवेज या इक्वल होगा या ग्रेटर, कम नहीं हो सकता, राइट। सो डिस्टेंस वी ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, नेवर बी जीरो, नेवर बी नेगेटिव, नेवर लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, राइट। ओके, never। okay, so now we will discuss the three things in comparison। अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी दैट मीन्स वो रेस्ट पे है, अगर कोई बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, उसी पोजीशन पे है हर एक टाइम पे, अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन t0, बॉडी यहीं पे है, देन यू विल एट दिस टाइम you will see the body at this position, right। now we'll move to this position at t point, this one the body distance, that means डिस्टेंस तो वाई एक्सिस पे कवर अप हो रहा है ना, वाई एक्सिस पे हमने एक्स शो कर रखा है, दैट इज द डिस्टेंस। सो द कांस्टेंट लाइन, दैट मीन्स को किसी भी टाइम पे देख लो बॉडी वहीं पे है, दैट मीन्स वो डिस्टेंस कांस्टेंट ही है, वो मूव ही नहीं कर रही है, राइट। नाउ द सेकंड केस इज आप जितना जैसे जैसे टी बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस आप इस पॉइंट पे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल टी एट 1 सेकेंड डिस्टेंस 1 मीटर, t at 2 second distance 2 meter, so that means that is a uniform motion, right। जैसे जैसे आप t इंक्रीज करोगे वैसे वैसे x, तो ये नहीं होगा कि टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। नेक्स्ट इज वेरिंग मोशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार की एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखी है ताकि आप ज्यादा फेमिलियर हो जाओ कि ग्राफ को मैं कैसे समझ सकता हूँ, राइट। यू विल सी अगर एक कार मूव कर रही है, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल यहां तक 5 सेकेंड्स है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां तक फर्स्ट 5 सेकेंड हो गए एट दिस पोजिशन, राइट। सो आफ्टर दिस यू विल सी दिस विल बी कॉन्स्टेंट, वाई दिस हैपन, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 मिनट्स में कार बिल्कुल लिनियरली मूव कर रही थी जैसे यहाँ पे कर रही थी, टी बढ़ा टाइम डिस्टेंस बढ़ा, टी बढ़ा डिस्टेंस बढ़ा, दैट मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है कार मूव करती जा रही है, इक्वल डिस्टेंस मूव करती जा रही है, बट
सडनली क्या हुआ, आई विल अप्लाई द ब्रेक, तो कार स्टॉप हो जाएगी। दैट मीन्स अब तो उतने 5 मिनट्स में, अगले 5 मिनट्स में उतना डिस्टेंस नहीं ट्रेवल अप कर पाएगी ना, आपको दोबारा से टाइम स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड देन यू विल सी कि टाइम लैग हो रहा है बिकॉज मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी। दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज द एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मीन्स आपने कुछ मोशन में हलचल कर दी, दैट मीन्स कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल दिया, आपने ब्रेक लगाई। तो उसके बाद तो कार स्टॉप, दैट मीन्स बॉडी मूव ही नहीं करी, तो कार विल स्टॉप। सो इट द कांस्टेंट मोशन हैपन, राइट, लाइक दिस। तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट मोशन होगी एज यू सी इन द फर्स्ट केस, तो क्योंकि बॉडी अब बिल्कुल रेस्ट में है, राइट, सो द बॉडी विल एट रेस्ट। ओके, I hope you will understand these 3 different concepts. Okay, next we move. Let me see. Okay, next is what is speed, what is velocity. See, आपको एक चीज बता दूं, स्पीड इन जैसे स्पीड डिस्टेंस में डायरेक्शन कंसेप्ट नहीं ले रहे, वैसे स्पीड में डायरेक्शन कंसेप्ट नहीं लेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कंसेप्ट लिया था, वैसे वेलोसिटी में कंसेप्ट लेंगे, राइट। सो द स्पीड इज व्हाट, द टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कितने टाइम में, बट ओनली डायरेक्शन कंसीडर करते, सॉरी ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन नहीं कंसीडर करते, राइट। सो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज द स्पीड। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं कितने टाइम में, दैट इज द स्पीड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज डिस्टेंस के मीटर, टाइम के सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला, m डिस्टेंस, t m t minus 1. So sorry, there is one mistake here, please make it correct. This is L, right, because it's a distance, not m. So here also L, right. So here power is 1 and m is 0, mass नहीं है इसमें, length है, right. So please make it correct, L by T here, क्योंकि length units है मीटर के, तो L t minus 1 और m0 L t minus 1. Okay, next is, guys, please make it correct in your PDF also, right. If there is some mistake in video, I will correct it. In PDF, you will make it correct, please. Okay. Next is velocity. The time rate of change of displacement of an object is called an velocity of an object. That means, अब हमने डायरेक्शन कंसेप्ट लेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट, किस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने टाइम में, दैट इज द वेलोसिटी। डेफिनेशन सेम रहेगी, बट यू विल नो दैट इज द डायरेक्शन कंसेप्ट है इन द वेलोसिटी। सो जहां पे स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो रहा है, वहां पे वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होगा। ओके, सो इट्स अ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें हम डायरेक्शन कंसेप्ट लेते हैं। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट और डायमेंशन सेम रहेंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड इज स्केलर, एज यू नो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बनी है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी, जीरो भी। दैट मीन्स वेलोसिटी भी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एंड स्पीड डिस्टेंस से बनती है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव और नेवर भी जीरो, राइट। तो आप कंपेयर करो स्पीड को डिस्टेंस से और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से, वैसे वैसे आप कंसेप्ट्स कंक्लूड करते जाएंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट इज स्पीड गिव अस द नॉलेज दैट हाउ अ बॉडी इज मूविंग। तो आप फास्ट, दैट मीन्स स्पीड सिर्फ हमें ये बताती है कि बॉडी कितना फास्ट मूव कर रही है, कितना स्लो, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। बट वेलोसिटी हमें बताती है बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस कवर अप कर रही है। सो इन थर्ड पॉइंट, द स्पीड गिव अस द नॉलेज दैट हाउ अ फास्ट बॉडी इज मूविंग, बट वेलोसिटी टेल्स अस दैट द डायरेक्शन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। Okay, next is uniform motion that I already discussed, but again I will discuss here that what is the difference between uniform and accelerated motion. Uniform motion means equal distance cover करेगी equal time में। आप पहले 5 मिनट्स में 5 डिस्टेंस ट्रेवल किए 5 मीटर का, नेक्स्ट 5 मिनट में भी 5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल अप करेगी। बट इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, it doesn't cover equal distance in equal interval of time, right? So accelerated means non-uniform motion and uniform motion means equal distance, equal interval time. One more thing, as you know,
मैंने आपको कोर्स के बारे में पहले भी बताया। यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि इक्वल डिस्टेंस हो रहा होता है इक्वल टाइम में, हमें नहीं मैटर करता कि वो किसकी वजह से हो रहा है, तो हम उसमें रीजन नहीं देखते, कोर्स नहीं देखते वो किसकी वजह से हो रहा है। बट एज आई गिवन यू एग्जाम्पल कि मैंने अगर कार में ब्रेक अप्लाई कर दिया तो वो कौन सी मोशन हो जाएगी, अब यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी। आइदर आप नॉन यूनिफॉर्म बोलो चाहे आप एक्सेलरेटेड, दैट इज वन थिंग। एक्सेलरेटेड मीन्स नॉन यूनिफॉर्म, राइट। तो आप देखोगे कि कार के एग्जाम्पल में ब्रेक लग जाती है, राइट। तो ब्रेक एग्जाम्पल में आप देखते हो पहले लिनियरली मूव कर रहे होते फिर कांस्टेंट, दैट मींस दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस नहीं हो रहा होता इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वहां पे हमें देखना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है। तो जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई की, दैट इज द रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। सो इन द केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन we will see that what is the cause of that motion, but in the case of uniform motion we doesn't see that what is the cause of that motion. Okay, next we discuss thing that is example I have discussed already कि पूरा यूनिफॉर्म मोशन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और कार की एग्जाम्पल से, राइट। सो यू विल अंडरस्टैंड दिस, I will explain this already. Okay, next is uniform motion again. This is the definition. If you want exact definition, if you come across in paper that what is uniform motion, that what you have to write. So that's why I have given two definition. The motion of an object is said to be uniform if it cover equal displacement or equal distance. Displacement किस केस में होगा, velocity के केस में, और distance किस केस में होगा, sorry, yes, in the case of speed. So motion of an object is said to be uniform if it covered equal displacement or equal distance in equal interval of time, right? And uniform speed क्या होगी, equal distance in equal interval of time. Uniform velocity क्या होगी, equal displacement in equal interval of time. So these all are the, जब आप पढ़ोगे एक बार तो आपको लगेगा कि मैंने एक ही चैप्टर में इस फर्स्ट लेक्चर में एक ही चीज को बार बार एक्सप्लेन कर रखा है। बट because when you will listen again and again you will come across same things again and again, then when you read the book then you will be able to very easy understand this topic, right? So आपको लग रहा होगा कि लास्ट में आते आते आप बोर हो रहे हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स द सेम थिंग, बट प्लीज रिमेंबर दीज आर वेरी बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि जब हम आगे चैप्टर करेंगे यू विल बी कंफ्यूज दैट मुझे वो वेलोसिटी की डायरेक्शन लेनी थी, मुझे डिस्टेंस कैसे काउंट अप करना था, राइट। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। सो आई विल डिस्कस दिस अगेन फ्रॉम द फिगर। फर्स्ट पोजीशन, बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। या आप बोल सकते हैं कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, कितना उसने डिस्टेंस चेंज किया, कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज किया अपॉन टाइम। पहले 0 पे था, कहाँ तक गया, एट फर्स्ट पोजीशन पे पहले ए पे गया, राइट। दैट मीन उसने इनिशियली पहले एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वो ऐसे भी, दैट मीन्स टोटल कितना हुआ एक्स प्राइम। तो एक्चुअली में हम इसमें डायरेक्शन कंसेप्ट देखते हैं, दैट मीन्स उसने एक्चुअल तो सिर्फ ए बी पाथ कवर अप किया ना, क्योंकि इतना तो कॉमन है दोनों में, ओ ए यहाँ तक भी किया और जब बी तक पहुंचा तब भी उसको इतना तो करना ही पड़ा। दैट मीन्स उसको एक्चुअल कितना करना पड़ा, तो आप माइनस करके निकालोगे, राइट, क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन का कंसेप्ट लेते हैं। तो ओ बी माइनस ओ ए, दैट मीन्स एक्स प्राइम माइनस एक्स, और यू कैन अंडरस्टैंड इन द फॉर्म फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट मीन्स एक्स प्राइम माइनस एक्स डिवाइड बाय टी प्राइम माइनस टी, राइट। सो दिस विल बी द change in displacement upon change in time, final position, final time minus initial time, right? I hope guys you will understand this lecture. If you find any difficulty, any type of query in this lecture or in the previous lecture, please let me know. You can contact personally also, right? Okay, so stay home, stay safe, be careful. Now please don't break your continuity in your study, right? Follow the lecture series regularly, and please like the video, comment and share as much as you can. Please like the video and please subscribe my channel Physics Tutorial by Jinkal Grover, right? And when you subscribe then a bell icon will come inside of the subscribe button. Please hit on that button, because so that you will get the notification of upcoming videos when you will hit that bell icon, right? So please subscribe, like it. If you find any difficulty, let me know, but don't break your continuity. Thank you so much. Take care. Best of luck.